फर्स्ट 3 इयर्स मुझे कुछ काम नहीं मिला। मॉर्निंग में मैं वहां जब पहुंचा और इवनिंग में मुझे कॉल आया दैट यू फाइनलाइज फॉर अ शो एंड दैट्स हाउ आई केम बैक टू द इंडस्ट्री। किसी महीने आप 10 लाख कमाते हो, किसी महीने आप कुछ नहीं कमाते। We've seen a lot of suicide cases in the film industry, specifically actors. That could be a lot of trauma that they were dealing with. One of the biggest trauma being काम नहीं है. ये 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आती है। एक हार्डवर्क, पेशेंस एंड योर डेस्टिनी। अगर इस इंडस्ट्री में आना है, रिजेक्शन फेस करने के लिए आपको तैयार होना। How acting in films and acting on television differs, and is this fair? मैं टेलीविजन एक्टर हूँ बिकॉज मुझे टेलीविजन में काम मिला, इसलिए मैं टेलीविजन कर रहा हूँ। आप मुझे काम दो, सी माय कैपेबिलिटी, लेट मी गिव एन ऑडिशन फॉर यू, देन डिसाइड। True. Don't be judgmental. Is there any sort of gender bias that you have ever faced in the industry? Television mostly is female driven. आज आप शोज ले लीजिए, जनक कैन only be a female, अनुपमा क्योंकि साथ भी कभी बहू। A lot people are accused of, the casting couch scenario. Have you ever got into a situation like that? I want to do a clean work. Casting couch doesn't exist. Okay. It does. हर इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजें खराब करने के पीछे पड़े। So how do you keep up with the demands of the industry where you are supposed to be absolutely fit, absolutely good looking? See, I'll be honest. I have faced a lot of thing. जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो आपको बताते हैं यार तू मोटा है, पतला है। कभी कभी एक किरदार ऐसा होता है जो मोटा है, तो उसके लिए मोटा आदमी कास्ट होगा। मैं इनिशियली ना एड्स के ऑडिशन नहीं देता था। जिग्नेश टुक मी फॉर एन ऑडिशन। फर्स्ट टाइम आई गेव द ऑडिशन एंड आई गॉट शॉर्टलिस्टेड एंड आई गॉट दैट एड। 5 बजे के करीब रिपोर्ट आई। ऑन फोन डॉक्टर टोल्ड मी दैट पुनीत अनफॉर्चुनेटली दिया इज पॉजिटिव, माय वाइफ। तो वन वेरी शॉकिंग थिंग डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट टेक हर फॉर द डिलीवरी। वो कोविड पेशेंट है, तो आई कैन नॉट डू द डिलीवरी। मैं क्या करूं? Today on Men Unplugged, we welcome an Indian TV actor, Mr. Puneet Panjwani, who is well known for his emotionally grounded and likable characters on shows like Bade Achhe Lagte Hain Season 2, Nagin, Maharana Pratap, and the most recent being Jhanak. So welcome to the show, Mr. Puneet. Thank you for those. Thank you so much. So getting started, first let us know, how did you land up with the Indian television industry? Basically, it's a long story. I mean, I was in Amravati. I used to do a lot of fashion shows for these fashion institutes and all of that. I had done pageant also, Mr. Glamour, where I had won that tag. So I was not very good at studies, I'll be honest. Okay. So my chacha used to stay in Bombay. So he told me once कि तुझे इस सब में इंटरेस्ट है, so why don't you come to Mumbai? मेरे कुछ दोस्त हैं and they might help you. So that's how I landed here in Mumbai. Okay. I had never thought कि I'll pursue acting as a career or I'll be going to Mumbai. ऐसा कभी सोचा ही नहीं था मैंने. It just happened. Okay. And I had given 3 years to myself कि मैं 3 साल जाके देखूंगा. If it works, well and good. If it doesn't, then I'll come back and join my family business or something like that. Okay. So that's how it started. And I'm sure during your time of struggle, when you started, when you gave 3 years to yourself for the acting career, what is that one thing that made you fall in love with? What is one thing that made you fall in love with the acting career? Again, I'll be very honest. पहले 3 साल, I mean, I did my acting diploma from Roshan Taneja Institute. So 6 months का वो course था. I did that. And after that, I started struggling. So first 3 years मुझे कुछ काम नहीं मिला. मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली पहले 3 साल. तो मैं तो वापस चला गया था घर. I had gone. मैं सोचा कि बस हो गया यार, अब मैं पापा से बात करता हूँ and I'll join my business and all of that and I'll continue over there only. तो मॉर्निंग में मैं वहाँ जब पहुँचा और इवनिंग में मुझे कॉल आया from Balaji Telefilms that you're finalized for a show. Oh, wow. And that's how I came back to the industry. Amazing. And what was that show for? It was a show for Pakistan and Gulf and India as well. It was a show called Khwahish on Sony, which was telecasted on Sony in India. Gulf में ARY Digital करके एक चैनल है, वहाँ पे उस पे टेलीकास्ट हुआ था. So that's how it started. Okay. Now, since we are talking about your entry to the industry and everything, and since you've done n number of shows that we know of, very well known shows and very watched shows,
Which was that character that changed your perspective towards the industry or your life in per se? सी एक एक्टर के लिए ना कोई भी ऐसा किरदार नहीं होता कि यार ये कर लिया तो आई हैव गॉट दैट थिंग कि यार ये कर लिया ना तो सब हो गया. Right. जैसे ही आप एक कैरेक्टर करते हो और वो खत्म होता है तो आप दूसरे की तलाश में लग जाते हो. सो अभी तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आया कि जिसको मैं हाँ, इफ आई टॉक अबाउट झनक, of course that character has given me recognition. People have started recognizing me on the roads and all of that. People taking selfies, autographs and whatnot. That has happened. Right. But as an actor, if you tell me कि ये character आप करके satisfy हो गए हो, no, ऐसा कुछ नहीं होता. That's what I feel. Right. An artist is never content with his work completely. Of course. जिस दिन आपको लगा कि यार हो गया, उस दिन आप अपनी दुकान बंद करके घर चले जाओ. Very well said. Mr. Puneet, another question out over here. Since you already mentioned there was a lot of struggle where you did not get work for 3 years and all, what has been the toughest part of being into this career? Toughest part is that आप पूरी कोशिश कर रहे हो, आपको पता है आप केपेबल हो, आपको पता है आप ये कई उन लोगों से जो वहाँ हैं उनसे अच्छे से कर सकते हो, उसके बावजूद भी आपको जब काम नहीं मिलता ना, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड दैट इज द फेस वेयर यू हैव टू collect yourself, pick it up from there and rise. Beautifully said. And this is also one of the motive of our podcast, which is your mental health. I am very sure you actors, you all struggle a lot. There's a lot of competitions that you all face. Every day there's a new face coming into the industry. What is that one thing, Puneet, in tough times where you faced rejection, where you were not having work? What is one thing that kept you going and motivated towards this? See, as I told you, I was not good at studies. If I, मतलब अगर मैं एक्टर नहीं होता तो I would have joined my family business. Right. I'm very clear about that. तो मुझे ये पता था कि यार मैं जब यहाँ आया हूँ 3 साल मैंने दिए थे, 3 साल में कुछ नहीं हुआ. I had gone back. And same evening I got a call from my production that you're finalized for this show. So इतना तो पता चल गया था, इतना तो समझ में आ गया था कि यार कुछ तो है, Right. कोई तो एक चीज है जो आपको यहाँ रोकना चाहती है. बिल्कुल. सो वो शुरू हुआ, फिर काम मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, अच्छा काम करना शुरू हुआ. देन फिर आदत पड़ गई. देन सी क्या होता है ना, एक एक्टर की लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्म एक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीविजन एक्टर्स, जैसे ही आपका शो खत्म होता है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. Right. Though people will recognize you, people will call you for the other roles, for other shows and all of that. But again, there is no guarantee. Right. Like एक शो खत्म होने के बाद आपको दूसरा शो कब मिलेगा, there is no guarantee. True. मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है. Right. So that's how it is. तो अपने आप को आपको मोटिवेट तो करना ही करना है किसी भी हालत में. Because end of the day, this is the career which you have chosen. Right. जिसमें इनसिक्योरिटीज हैं, अनस्टेबिलिटी है, देयर इज नो स्टेबल इनकम ऑल्सो इन दिस प्रोफेशन. किसी महीने आप 10 लाख कमाते हो, किसी महीने आप कुछ नहीं कमाते. बिल्कुल. सो मेंटली आपका कहते हैं ना कि आपका दिमाग जो है वो उस तरह से ट्यून होने लगता है. इतना टाइम आपने स्पेंड किया है तो आपको पता है कि अब ये शो खत्म हो रहा है. इट माइट टेक टाइम, यू माइट गेट अ शो इन अ वीक ऑल्सो. Right. तो आप मेंटली प्रिपेयर हो. Correct. सो मोटिवेशन अपने आप से आती है अंदर से. उसके लिए कुछ करना या मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत होती है. आप इतने यूज टू हो जाते हो. एंड रही बात रिजेक्शन की, रिजेक्शन तो हमारा एवरी डे होता है. एवरी डे, लाइक यू गिव एन ऑडिशन, इफ इट वर्क्स गुड, इफ इट डजंट मूव ऑन, दूसरा ऑडिशन. This makes me ask you a very good question over here, which is we've seen a lot of suicide cases in the film industry, specifically actors. That could be a lot of trauma that they were dealing with. One of the biggest trauma being काम नहीं है. True. Okay. So I'm glad that you are a personality who can motivate himself and keep up with the rejections and the failures and of your industry.
what would your advice be to the youngsters who are getting into this industry or who are already in this industry, but then, land up with such depression or such cases where they think of ending their lives? सी ऑल बी ऑनेस्ट, हम जिस परवरिश से आते हैं वहाँ पे हमें डिप्रेशन नाम का वर्ड कभी सुना ही नहीं था. हम सैड बैठे होते तो माँ बाप बोलते क्या कर रहा है, वाई यू सिटिंग सैड, चल बाहर जा खेल जाके. दैट्स हाउ हमारी अपब्रिंगिंग है. हमारे टाइम पे डिप्रेशन वर्ड ही नहीं था, पता ही नहीं था, Right. ये अवेयरनेस ही नहीं थी तब. डिप्रेशन लोगों को अभी पता चलने लगा है. लास्ट फ्यू इयर्स पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट. बट यस, एस्पायरिंग एक्टर्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आती है इस इंडस्ट्री में. एक, हार्डवर्क, पेशेंस एंड योर डेस्टिनी. डेस्टिनी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर करियर. Right. किस्मत पे बहुत सारी चीजें यहाँ डिपेंड होती हैं. मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा केपेबल, कहीं ज़्यादा हार्डवर्किंग एक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं जिनके पास काम नहीं है. राइट? तो डेस्टिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन. Right. तो आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना है, रिजेक्शन फेस करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा. बिकॉज हर दूसरे कदम पे आपको रिजेक्शन मिलेगी. Right. एवरी डे होगा, एवरी डे. सो आप उसको मुझे थिक स्किन्ड बोल लीजिए या स्ट्रांग हेडेड बोल लीजिए या व्हाटएवर. तो अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो ये चीज़ें प्रिपेयर करके आना कि ऐसा नहीं होगा कि आपको रातों रात काम मिल जाएगा. बिल्कुल. ये भी हो सकता है कि रातों रात भी काम मिल जाए. ऐसा भी होता है, लोग आते हैं 2 दिन में उनको काम मिल जाता है. बट अगेन देयर इज नो श्योरिटी आफ्टर दैट कि भैया ये काम हुआ है तो इसके बाद कंटिन्यूसली काम मिलेगा. Correct. तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके आइए. Right. One thing that we were just discussing off the camera is about the difference and how Bollywood has been a little biased towards television actors. So, what's your take on this? How acting in films and acting on television differs, and is this fair? सी, एक्टर इज एन एक्टर. मीडियम चेंज होते हैं, थिएटर होता है, टेलीविजन होता है, फिल्म्स होती हैं, मीडियम चेंज होता है, बट एक्टर एक्टर ही होता है. Right. ठीक है. कुछ लोग हैं बॉलीवुड में जो डिफरेंशिएट करते हैं कि यार ये टेलीविजन एक्टर है तो इसको काम नहीं आएगा, ये फिल्म का काम नहीं कर पाएगा, यार ये फिल्म एक्टर है तो इसको ले लो. नहीं, मैं टेलीविजन एक्टर हूँ बट बिकॉज मुझे टेलीविजन में काम मिला इसलिए मैं टेलीविजन कर रहा हूँ. आप मुझे काम दो, सी माई कैपेबिलिटी, लेट मी गिव एन ऑडिशन फॉर यू, देन डिसाइड. True. डोंट बी जजमेंटल. कुछ लोग हैं जो जजमेंटल हो जाते हैं, मतलब उनके अपने प्री नोशंस होते हैं जो सेट हो जाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. नहीं, इनफैक्ट आई फील जिस तरीके का काम टेलीविजन में होता है, एक्टर्स आर मोर स्पॉन्टेनियस. True. टेलीविजन एक्टर्स को टाइम कम होता है प्रिपेयर होने के लिए. उनके पास एवरी डे देयर इज अ टेलीकास्ट, सो एवरी डे देयर इज अ न्यू स्क्रिप्ट. आपको बाउंड स्क्रिप्ट नहीं मिलती है टेलीविजन में कि आप 1 महीना पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो रेगुलरली, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. नहीं, आपको 15-20 मिनट पहले से स्क्रिप्ट मिलती है एंड यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू शूट. Oh my God. Because that's telecast is there. Every day there is a telecast, there is a deadline. right. So I feel television actors are more spontaneous, more impromptu, more hardworking as well, I'll say. Right. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड वाले हार्ड वर्किंग नहीं है या अच्छे एक्टर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. बट कुछ लोगों ने ये जजमेंट कर लिया है कि ये टेलीविजन एक्टर है तो यार सोच समझ के. हालांकि ऐसा नहीं होता. But then this makes you people at a disadvantage, whereas you all are facing much difficult situations as compared to the film actors, right? So, is there nothing that somebody can take a stand for in this particular issue? सी, आप उस पोजीशन में होने चाहिए वेर यू टेक अ स्टैंड. एंड इन दिस होल इंडस्ट्री अगर सबसे वल्नरेबल कोई है तो वो एक्टर्स हैं. क्योंकि स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, पैसा कोई और लगाता है, Right. डायरेक्ट कोई और करता है, शूट कोई और करता है. एक्टर के पास कुछ नहीं है उसके डायलॉग और उसकी स्किल के अलावा. True. दैट्स व्हाट आई फील. और
वहीं आप देखो, आज जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आप नाम गिन लीजिए, वेदर मिस्टर शाहरुख खान एंड इरफान खान, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार नहीं, इरफान खान, शाहरुख खान, ये दो बड़े नाम हैं जो टीवी से ऊपर आए हैं, Right. जिन्होंने दे स्टार्टेड देयर करियर इन टेलीविजन Hmm. एंड दे बिकम अ ह्यूज स्टार. Right. तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? Hmm. नहीं कर सकते. आप किसी को इस उससे जज नहीं कर सकते कि ये टेलीविजन करता है तो ये इसकी एक्टिंग वैसी होगी, Mm-hmm. ये और कुछ कर ही नहीं सकता. आप नहीं कर सकते. But I'm sure there's a very they've typecast Yes, the of television course. actors, as you said, they are well known for their reactions Yes, yes, yes. as compared to being judged on their skills. कुछ बॉलीवुड के लोगों को ऐसा लगता है कि टेलीविजन एक्टर्स बने ही इसके लिए, ढंग 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 नहीं. अब टेलीविजन मीडियम ऐसा है, दैट्स व्हाई दे डू इट. Right. दे वांट दैट ड्रामा एवरी डे True. टू गेट द ऑडियंस. Obviously. बट ऐसा तो नहीं है ना कि एक टेलीविजन एक्टर फिल्म में अच्छा काम नहीं कर सकता. बिल्कुल नहीं. आप ऑडिशन तो कीजिए, आप उन्हें बुलाइए तो सही. हालांकि सब लोग ऐसे नहीं. बहुत आज अगर आप इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी फिल्में हैं, अगर आप उनमें देखोगे तो बहुत सारे टीवी एक्टर्स अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे. Right. Very true. Moving on to our next question. If at all there would be one thing that you would want to change about the television industry, what would it be? वर्किंग आवर्स. Okay. बिकॉज इतना प्रेशर है सबके ऊपर, बिकॉज एवरी डे आपको वो आधे घंटे का एपिसोड पहुंचाना ही पहुंचाना है, टेलीकास्ट होगा ही होगा. Right. सो आई फील थोड़ा सा और प्लानिंग करें या कुछ करें जिससे कि चीज़ें बेहतर हो पाएं सबके लिए, नॉट ओनली फॉर द एक्टर्स, फॉर होल यूनिट, फॉर डायरेक्टर्स, क्योंकि सबकी अपनी एक लाइफ होती है, Absolutely. सबको टाइम देना होता है, सबकी फैमिलीज होती हैं. True. तो थोड़ा सा अगर प्लानिंग या कुछ करके अगर टेलीविजन बेटर हो सकता है तो व्हाई नॉट. And and it helps making the actor's life easy. एवरीबडी इज लाइफ इजी. Right. आज मुझे बताइए, अगर आप 30 दिन में से आई थिंक 30 दिन में लोग 32 दिन काम करते हैं टीवी में. एक्स्ट्रा Okay. शिफ्ट पकड़ के अगर आप देखोगे तो 30 दिन में 32 दिन काम करते हैं लोग. बट वहीं आप अगर प्लानिंग करें और पहले से थोड़ा राइटिंग हो, सबका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 5-7 दिन अपनी फैमिली के लिए बचा लेंगे लोग. Right. जो अपनी एक लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसके लिए कहीं ना कहीं टाइम दे पाएंगे. True. दैट्स व्हाट आई फील. Absolutely. Now, coming to another aspect of the television industry, which is high competition. And is there any sort of gender bias that you have ever faced in the industry? See, television mostly is female driven. Okay, is it? Yeah, is it? It is. Because आज आप शोज ले लीजिए, मेरे लास्ट शो का नाम था झनक. जी. तो झनक will only be a female. Female, A true. male cannot be a झनक. अनुपमा. आप नाम ले लीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. सो आपको वो नाम से ही पता चल जाएगा कि इट्स फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री. Right. ऐसा नहीं है कि लोग अलग चीजें नहीं बनाते हैं, बट हमारी ऑडियंस अभी भी थोड़ा सा वही चीजें पसंद करती है. बिकॉज कुछ लोग जो अलग शोज बनाते हैं, मे बी दे डोंट वर्क. दैट्स व्हाई, बिकॉज बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो नोबडी वांट्स टू टेक अ रिस्क. Correct. एंड जिस दिन कोई बंदा एक अलग चीज बनाता है तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दैट. Following it. True. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. Help me understand, touching a very controversial or rather sensitive topic over here, which is casting couch. We hear a lot of stories. We, as the people, the audience, we hear a lot of stories through the medium of, shows or news or something like that, where a lot people are accused of, the casting couch scenario. Have you ever got into a situation like that? See, personally, I haven't faced something like that. Because I was always very clear that I want to do a clean work.
साफ सुथरा काम करना है मुझे किसी चीज के लिए, दैट इज व्हाई इट टुक टाइम फॉर मी, Right. मे बी यू नो, कि आई वांटेड गो थ्रू दैट ओल्ड स्कूल प्रोसेस, ऑडिशन दो, लोगों से मिलो, सो दैट्स हाउ आई बिलीव इन. बट मैं अगेन डिनाई नहीं करूंगा कि कास्टिंग काउच डजंट एग्जिस्ट, Okay. इट डज. हर इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजें खराब करने के पीछे पड़े होते हैं. वैसे ही कुछ लोग इस इंडस्ट्री में भी हैं, नॉट ऑल, कुछ True. लोग हैं. अगेन दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, whether you want to give in that situation or not. Are you ready to face that wait period जिसमें आपको थोड़ा डिले होगा काम मिलने में? Are you ready to do that? Correct. तो वो इंडिविजुअली बहुत डिपेंड करती हैं चीज़ें. हालांकि नए नए लोग आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या चलता है, हाउ इट वर्क्स. Right. तो उनका शोषण किया जाता है कहीं ना कहीं. बट अगर आप में वो क्षमता है, अगर आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सको और उस सिचुएशन में गिव इन ना करो, देन आपको कोई हरास नहीं कर सकता. बिकॉज यहाँ पे आई फील, आई पर्सनली बिलीव दैट कोई भी आपको काम नहीं दिला सकता. इट्स योर वर्क, योर हार्ड वर्क, योर डेस्टिनी विच विल गिव यू वर्क. True. बाकी आप किसी के लिए फेवर कर दोगे या किसी से फेवर लोगे, इट डजंट वर्क लाइक Doesn't दैट. work. It doesn't work like that. You have to do your hard work. You have to go through the process, audition, look test, whatever. But it is it's an industry that requires a lot of efforts from your end as an actor, because patience भी आपको उतनी ही रखनी होती है, and as well as you've got to keep up with whatever is Yes. Update trending. रखना है अपने आप को. Right. How do you manage that? Because now coming to a point which is very crucial, we all know, that is grooming. So how do you keep up with the demands of the industry, where you are supposed to be absolutely fit, absolutely good looking, and how long can you sustain such things? See, I'll be honest. I have faced a lot of thing. ये जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो आपको बताते हैं, यार तू मोटा है, तू पतला है, तू ऐसा है, तू वैसा है. हालांकि एक किरदार के लिए आपको कभी कभी एक किरदार ऐसा होता है जो मोटा है, तो उसके लिए मोटा आदमी कास्ट होगा ना. अगर वो मोटा आदमी पतला हो जाता तो वो कैसे कास्ट होता. Correct. आई हैव ऑल्सो हैड वेट इश्यूज. मैंने खुद अपने आप से काफ़ी बार डील किया है कि मेरा वेट ज़्यादा है, मे बी आई एम फैट, मे बी आई एम नॉट एज फिट एज द हीरो इज. बट अगेन देर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, देर इज लॉट ऑफ डिमांड. Right. बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना. अब हर आदमी दुनिया में एक ही शेप, एक ही साइज, एक ही स्ट्रक्चर का तो नहीं होता है, अलग अलग होते हैं. True, but isn't it difficult? आपको किसी रोल के लिए you have to put on weight, किसी Yes. रोल के लिए you have to reduce. So don't you think this is like absolutely challenging, and how do you kind of put up with it? See, it is challenging. That's why I told you कि patience, hard work and destiny, ये तीनों का मिलाप होगा. और उसके बाद भी आपको पता नहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. बट जब आपको काम मिलेगा, जब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो, जब आपको अपना काम पता है, जब आपको अपना क्राफ्ट पता है, जब आपको काम मिलेगा तो वो नोटिस होगा Right. कि दिस गाय इज डूइंग गुड, दिस गाय इज ब्रिलियंट, तो व्हाई डोंट वी कास्ट हिम. True. Very true. डिजर्विंग है, आपको काम आता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है. वो अपॉर्चुनिटी कभी भी आती है. और किसी भी प्रोफेशन में आप जीरो से ही तो स्टार्ट करते हो ना. Right. whether it's job, whether it's anything, any profession I'm talking about. ऐसा तो नहीं सडनली आप वीपी बन जाते हो कॉर्पोरेट में. Absolutely not. आप एक एम्प्लॉय से शुरू करोगे, देन यू विल अपग्रेड योरसेल्फ. सो दैट्स हाउ ग्रूमिंग इज. Okay. आप रॉ हो, आप यहाँ आ रहे हो, आप ऑडिशन दे रहे हो, आप कैमरे के सामने, आप मिरर के सामने घर पे डायलॉग रिहर्स कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो. तो आपको जब आप करते जाओगे तो अपने आप पता चलता जाएगा कि यार ये चीज़ खराब हो रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो इसको मैं थोड़ा फाइन ट्यून करके इसको अच्छा करता हूँ. Right. So that is your practice, that is your hard work. Makes sense. So, Puneet, help me understand. There is a lot of competition in the industry. The competition among men, is it
toxic or motivating when it comes to your industry? I'll say दोनों है, but I've been lucky. I'll tell you an example. मैं initially ना ads के audition नहीं देता था. Okay. I never used to go for ads and all of that. कि you know यार ये करते हैं ना, TV is a longer medium, पैसा अच्छा है, blah 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 whatever. तो मैं ads में कभी नहीं जाता था. There is a friend of mine, Jignesh Joshi. He is also an actor. Okay. एंड कहीं ना कहीं उस टाइम पे हम दोनों एक ही कैटेगरी में फिट होते थे. सो जहाँ आप कंपटीशन की बात कर रहे हो जी. विद इन मेन, तो ऐसा भी होता है. जिग्नेश टुक मी फॉर एन ऑडिशन. ही वॉज गोइंग फॉर एन ऑडिशन, एड ऑडिशन. ही टुक मी देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम आई गेव द ऑडिशन एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड एंड आई गॉट दैट एड. Oh wow. या सो ऐसा भी होता है. Right. सी हमारा जो ग्रुप है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मोस्ट ऑफ देम आर एक्टर्स. Right. Very few friends from the other industry or something like that. But मेरे फ्रेंड्स टचवुड इतने मोटिवेटिंग है, यू नो. एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बताया. जी. जितने भी मैंने एड्स किए हैं, आई डेडिकेट टू जिग्नेश बिकॉज ही टुक मी फॉर द ऑडिशन. आई नेवर यूज्ड टू गो. Right. मुझे लगता था यार इतनी भीड़ होती है, इतने घंटे लगते हैं वहां पे, कौन जाएगा. आई नेवर यूज्ड टू गो. सो ही टुक मी एंड पहला एड इतने अच्छे पैसे मिले मुझे उसमें. तो आई थैंक हिम फॉर दैट. आज तक मैं उसको बोलता हूँ, यार तू ले गया था मुझे एड्स के लिए. I'm sure, I mean, it's great that there are people like Jignesh who exist in, कंपटीशन भी है. लोग सी कहीं ना बहुत सारे एक्टर्स इनसिक्योर बहुत होते हैं right. when it comes to screen space and all of that, dialogues. किसी के कभी ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, तो वो सोचता है यार मेरे डायलॉग्स क्यों नहीं है, मैं क्या करूं. तो वो भी चीज़ होती है. बट अगेन आप जब काम करने लगते हो तो आपको समझ में वो चीज़ें आने लगती हैं कि यार ये सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है. Right. Right. बट फिर वहीं आ जाता है कि जब आपको आपका काम पता है, व्हेन यू नो योर वर्क, आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको कि सामने वाला क्या इनसिक्योरिटी कर रहा है, सामने वाला क्या करना चाह रहा है. True. आपको आपका काम आना जरूरी है. Right. Just like you said, Jignesh as well went for the same he was audition. confident enough कि यार हम लोग दोनों सेम कैटेगरी में हैं, फिर भी ये मेरा दोस्त है एंड मैं इसको लेके जा रहा हूँ बिकॉज समवेयर ही वॉज कॉन्फिडेंट कि यार एड है जहाँ 100 लोग और आ रहे हैं, अगर ये एक मेरा फ्रेंड मेरे साथ आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Correct. क्योंकि काम तो आपको अपनी किस्मत से ही मिलेगा, वो जिसका है उसी को ही मिलेगा. Right. Right. मे बी वो मेरे लिए लिखा हुआ था. दैट्स हाउ माई एड जर्नी स्टार्टेड. True. You've done a couple of ads with the Many ads. famous cricketer Dhoni as well, right? Yes. I have So what done was that ad ads. about? It was about mutual funds. Okay. Yeah. There were two of them. एक अराउंड 2019 में किया था और एक आई थिंक 21 में किया था. 2 एड्स थे. Okay. Yeah. So as you said, Jignesh ji was there who helped you out with the ads, and all the credit goes to him for your ads Yes. career. Help me understand, what is the concept of, do you all have this concept of bromance amongst actors? हाँ बिल्कुल है. आई मीन आज भी पहले जो मेरा फर्स्ट शो था उसमें जो मेरे को एक्टर्स थे वो आज तक मेरे दोस्त हैं. अब भी हम लोग दिवाली में साथ में थे, दिवाली की रात को हम लोग साथ में थे. Right. Yeah. So any incident that you remember that kind of helps you understand कि yeah, these are my people, these are my, and I don't face competition or insecurities from them. एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, मतलब वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ वेरी डिफिकल्ट डेज ऑफ माई लाइफ. in 2020 there was COVID and my wife was pregnant that time. May end was the due date. तो that time डॉक्टर्स ने बोला था और गवर्नमेंट ने बोला था कि every pregnant women has to go through COVID test. Right. So हमारा ड्यू डेट था मंथ एंड में. तो अराउंड 22nd we did the test. टेस्ट किया और तब रिजल्ट शायद 24 घंटे या 48 घंटे में आता था. तो 24th 5 बजे के करीब
रिपोर्ट आई, डॉक्टर कॉल्ड मी एंड ऑन फोन डॉक्टर टोल्ड मी दैट पुनीत अनफॉर्चुनेटली दिया इज पॉजिटिव, माय वाइफ. Your wife, right? सो पहले 2-5 मिनट तो मुझे समझने के लिए ही लग गया कि व्हाट हैज हैपेंड, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल. वी टुक एवरी प्रिकॉशन पॉसिबल. Right. मतलब वो सारी चीजें की थी जो कोविड में हम लोग कर रहे थे, फ्रॉम वॉशिंग एवरीथिंग टू एनीथिंग. Right. तो समझ ही नहीं पाया मैं कि हुआ क्या है. तो 5 मिनट मैंने अपने आप को सेटल डाउन किया. देन आई वेंट टू माय वाइफ, आई टोल्ड हर कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, बट डॉक्टर इज सेइंग कि कल हम लोग दोबारा रिपोर्ट करेंगे एंड आई एम श्योर शी विल बी नेगेटिव बिकॉज इट कैन बी अ फॉल्स रिपोर्ट ऑल्सो. Correct. बट माई वाइफ स्टार्टेड क्राइंग. वो टेंशन में आ गई बिकॉज तब माहौल ही ऐसा था, Right. Right. क्योंकि अवेयरनेस था ही नहीं किसी के पास. किसी को पता ही नहीं था कि ये चीज क्या है. Correct. Yeah. और पीक टाइम था तब, इतने ज्यादा कोविड केसेस आ रहे थे बॉम्बे में कि बेड मिलना भी मुश्किल हो रहा था. Right. तो वो काफी डर गई थी और रोना शुरू कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट. तो कैसे ना कैसे मैंने उनको समझाया. वी वर देयर एंड खाना वाना खाया हमने रात को. तो रात को मैं उसको हल्दी दूध देने गया बिकॉज मेड्स कोई हेल्प तो था नहीं Correct, तब, सब correct. आपको ही करना है. तो मैं हल्दी दूध देने गया, दूध दिया एंड आई केम बैक. आई वाज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम. तो शी कॉल्स मी आफ्टर सम टाइम. मैं कहा क्या हुआ. शी सेड कि आई थिंक मेरा वाटर बैग लीक हो रहा है. Oh my God. Yeah. I'm still feeling goosebumps. तो आई सेड ये क्या होता है, मुझे नहीं पता था तब. मेरा पहला बच्चा था और इतनी ज्यादा नॉलेज आपको नहीं होती Correct. कि ऐसा भी हो सकता है. Correct. तो शी सेड ऐसा ऐसा है एंड वी शुड कॉल द डॉक्टर. Absolutely. तो जो गायनेक थे, जो डॉक्टर थे जिनके पास हम लोग पिछले 1.5 साल से जा रहे थे, तो हमने उनको कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है. तो वन वेरी शॉकिंग थिंग डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट टेक हर फॉर द डिलीवरी बिकॉज माई हॉस्पिटल इज नॉट कोविड हॉस्पिटल. Oh my God. तो मैं उनको, वो कोविड पेशेंट है तो आई कैन नॉट डू द डिलीवरी. एंड ये बात है कुछ रात को 1-1:30 बजे के आसपास की. Oh my. अब 1:30 बजे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वाई दिस डॉक्टर इज सेइंग लाइक दिस, जिसके पास मैं 1.5 साल से जा रहा हूँ, फॉलोअप है, सारी चीज़ें उसने की हैं, एंड लास्ट मोमेंट पे इज सेइंग कि मैं डिलीवरी नहीं कर सकता. वेयर डू आई टेक हर एंड व्हाट डू आई डू. और तब फैमिली भी आनी थी मेरी, कोई भी नहीं था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे. तो आई सेड सर मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बताइए व्हाट इज द सॉल्यूशन. Right. तो बोलता है कि कोविड हॉस्पिटल में ही ले जाना पड़ेगा एंड रुक जा, आई विल कॉल फ्यू हॉस्पिटल्स एंड आस्क फॉर द बेड. सो ही माइट हैव कॉल्ड फ्यू हॉस्पिटल्स, कहीं भी बेड नहीं मिला. अब समझना है मैं क्या करूं. बट उस दौरान एक चीज़ ये अच्छी की थी कि मैंने थोड़ा रिसर्च करके रखा था कि कौन सा हॉस्पिटल इज कोविड हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल इज दिस, ब्ला ब्ला ब्ला, अराउंड कौन सा हॉस्पिटल है. तो ये रिसर्च मैंने थोड़ी बहुत करके रखी थी, पता नहीं कब जरूरत पड़े ना पड़े, जस्ट ऐसे रैंडमली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन डॉक्टर अभय विस्पुते, ही हैज अ हॉस्पिटल इन गोरेगांव एज वेल. तो इनकी एक और ब्रांच है कुर्ला में. सो आई कॉल डॉक्टर अभय कि मैं कहा अभय भाई ऐसा ऐसा है, माई वाइफ इज कोविड पॉजिटिव एंड वाटर बैग लीक हो गया. सो ही सेड मेरा एक ब्रांच है कुर्ला में विच इज कोविड हॉस्पिटल, तो तू वहाँ लेके आ जा, मैं बेड अरेंज करता हूँ. तो ये सब ड्यूरिंग बातें करते करते कुछ 2:30-3 बज गए रात के. तो 2:30-3 बजे आई टुक हर इन माई कार. मैंने उनको पीछे की सीट पे लेटाया एंड आई वॉज ड्राइविंग. आई स्टे इन मलाड. तो मलाड से कुर्ला जाने के लिए आपको नॉर्मल डे पे एनीथिंग बिटवीन 45 to 1 hour आराम से मिनिमम लगेगा ही लगेगा. बट दैट नाइट, मतलब इट्स बिन 20 years आई एम इन बॉम्बे, मैंने आज तक बॉम्बे को वैसा कभी नहीं देखा. I agree. लाइक वो हाईवे पे ना बंदा ना बंदे की जात, रात को 3 बजे सुनसान खाली. एंड इट टुक मी ओनली 20 minutes विद अ प्रेग्नेंट विमेन बिहाइंड मी. आई वॉज ड्राइविंग वेरी स्लो. 20 minutes में आई वॉज इन कुर्ला.
That was lockdown period. एग्जैक्टली मतलब कोई था ही नहीं. तो वहाँ पहुँचे, फॉर्मेलिटीज़ हुई एंड इट वाज अ कोविड हॉस्पिटल. मैं सिर्फ लॉबी तक जा सकता था, ऊपर दे टुक हर टू द 4th फ्लोर. एंड यू नो आपका पहला बच्चा है, आप बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हो यार कि Right. हम ऐसा करेंगे, आई विल बी विद यू इनसाइड, मे बी आई विल कट द एम्बिलिकल कॉर्ड और व्हाट नॉट. आप Right. प्लान करते हो, आप चीज़ें सोचते हो. True. एंड उनको व्हील चेयर पे बिठा के एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो. एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ मतलब हम दोनों रोना शुरू हुआ वहाँ पे दोनों का. सो खैर अब वो करना ही था. सो शी वेंट. और तब डॉक्टर्स ने फोन भी अलाउ नहीं किया था कि फोन कैन ऑल्सो बी द कैरियर ऑफ द वायरस एंड ऑल ऑफ दैट. तो फोन भी अलाउड नहीं था. तो उन्होंने कहा कि वार्ड में एक फोन है वेर यू कैन कॉल एंड वीडियो कॉल एंड वॉट एवर यू कैन टॉक टू हर. अब मैं वहाँ से बाहर निकला और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. मैं यहाँ रुकूँ, मैं घर चला जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. आई एम सिटिंग देयर इन द कार बिकॉज कुर्ला कोई था नहीं आसपास, सुनसान एकदम, मतलब कोई आदमी नहीं है सड़क पे. तो मैं वहाँ बैठा 1 घंटा. फिर मैं बोला यार अब सुबह आना है वापस, तो चलो घर पे चलते हैं वापस. सो आई केम बैक होम. अब मुझे घर आके ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ. वेदर शुड आई गो स्लीप इन द बेडरूम, वेदर शुड आई स्लीप इन द हॉल और डू वॉट, किसको कॉल करूँ रात को 4 बजे, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. यू नो माई ब्रेन स्टॉप्ड फंक्शनिंग ओनली कि ये हुआ क्या. एवरीथिंग वॉज सो नाइस एंड हैप्पी, सडनली क्या हो गया. तो जैसे तैसे मैं हॉल में लेटा एंड नींद तो आई नहीं मुझे. और सुबह मुझे 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँचना था. तो मैं सुबह उठा एंड आई टुक बाथ, फ्रेशन अप हुआ और सडनली माई डोर बेल रिंग्स एंड देयर वर BMC पीपल एंड माई सोसाइटी सेक्रेटरी कि आपके घर पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, सो यू हैव टू डू द क्वारंटाइन. Oh my God. मैं कहा, एंड देयर वाज अ लेडी BMC ऑफिसर. मैं कहा मैम, माय वाइफ इज एट द हॉस्पिटल एंड शी इज प्रेग्नेंट एंड उनका डिलीवरी है अभी, सो आई एम गोइंग, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू. मैं जा रहा हूँ, आपको पुलिस बुलाना है, आपको क्या करना है आप देख लीजिए, बट आई विल गो. तो मतलब, और हमारी सोसाइटी में सबसे पहला केस हमारा था, तब तो कोई था नहीं. Oh God. बट लकीली वी वर देयर फॉर लॉन्गर टाइम इन द सोसाइटी. तो सारे लोग जानते थे, सेक्रेटरी यूज्ड टू नो मी. सो ही सेड पुनीत आप जाइए, आई विल हैंडल एवरीथिंग, आप यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इफ यू नीड एनी हेल्प टेल मी. सो आई वेंट. मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ पौने 10 बजे, पौने 9:50 को, पौने 10 बजे और 9:50 को I met the doctor who was in the PPE suit and only eyes were visible and I could make out there is a lady. तो I just requested her कि mature pregnancy, आप if you could do a normal delivery that will be great, otherwise please take care of her. So she said don't worry, I'll do my best and all of that, and she left. And bus within 10 minutes I got the news that baby girl is arrived. तो मैंने सबसे पहले पूछा हाउस दिया. शी सेड बोथ आर हेल्दी एंड हैप्पी, डोंट वरी अबाउट इट. एंड दे डिड द C-section बिकॉज दैट टाइम वेटिंग पीरियड वाज Right. नॉट अलाउड फॉर देम. True, true. कि नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, ऑल ऑफ बिल्कुल. दैट. तो उनको वेटिंग पीरियड अलाउड नहीं था बिकॉज शी वाज कोविड पॉजिटिव एंड दे डिड द C-section. तो ये हुआ एंड दिया टोल्ड मी लेटर दैट डिलीवरी हुई एंड दे शोड मी बेबी लाइक दिस फ्रॉम फार एंड दे टुक हर. मुझे छूने भी नहीं दिया, टच भी नहीं करने दिया. तो मैं तो बाहर ही था हॉस्पिटल के. आई गॉट टू नो, तब तक तो सारे फैमिली को पता चल गया था, दिया की फैमिली को पता चल गया था, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, सबको पता चल गया था. तो मेरा भी टेस्ट हुआ, बेबी का भी टेस्ट हुआ. नेक्स्ट डे रिपोर्ट आया and we both were negative. And my friend doctor tells me that this is COVID hospital. You have to move the baby from here. Oh my God. One day baby. One day baby. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे हाथ पे क्वारंटाइन 14 दिन का स्टैंप लगा हुआ है.
आई एम अ सिंगल पेरेंट, फर्स्ट टाइम एक दिन के बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाऊं कोविड टाइम में, वेयर डू आई गो? Very, very tricky situation. तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर बोला लेना तो पड़ेगा बिकॉज ये कोविड हॉस्पिटल है, मैं उसको कहाँ रखूँ यहाँ पे, Right. और मैं मदर के पास लेके नहीं जा सकता बिकॉज शी इज कोविड पॉजिटिव। अब जैसे तैसे इधर उधर बात करने लगे, बातें हुई, तो जैसे कि आपने फ्रेंड्स की बात की इंडस्ट्री में, आई हैव अ कपल फ्रेंड जो मेरे पहले शो में थे हमारे साथ, माय फर्स्ट शो ख्वाहिश, तब से वी आर फ्रेंड्स। तो दे सेड, दे कॉल्ड मी दैट यू डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ द बेबी। How sweet is that? और उनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य एंड अंजलि मुखी। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे डोंट हैव अ चिल्ड्रन, दे हैव पेट्स, सो उनके बच्चों की तरह हैं वो। तो तब सोसाइटीज़ भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, सोसाइटीज़ भी अलाउ नहीं कर रही थी कि कोई कोविड पॉजिटिव हमारे सोसाइटी में आए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो समहाउ वो रिपोर्ट नेगेटिव थी हमारे पास, सोसाइटी से परमिशन ली, वो लोग समारा को अपने घर ले गए, माई डॉटर्स नेम इज समारा, सो वो लोग उसको अपने घर ले गए एंड आई वॉज विद देम ड्यूरिंग द टाइम, एंड यू वोंट बिलीव आई वॉज सो स्कैर्ड फ्रॉम इनसाइड। आई स्टिल हैव द वीडियोज। जब वो नर्स हैंड ओवर कर रही थी हमारी डॉटर को हॉस्पिटल से, एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड अंजलि कि आप लो उसको, आई डोंट वांट टू टच हर, मे बी आई माइट बी कैरिंग द वायरस, मे बी आई हैव समथिंग, क्या मेरे छूने से मतलब कुछ हो जाए उसको। मतलब मैंने अपनी बच्ची को सिर्फ दूर से देखा और उनके हाथ में दे दिया। तो वहाँ से फिर हम लोग वो अपने घर ले गए। आई वॉज एट माई प्लेस, माई वाइफ वॉज इन द हॉस्पिटल एंड बेबी वॉज देयर। मेरा पूरे दिन में मेरी वाइफ का एक ही काम होता था, हम लोग ने उनको बोला था प्लीज़ आप एक अपना फ़ोन डेडिकेट कर दो, सारा दिन वीडियो कॉल पे मैं उसको देखता रहता था। आई यूज्ड टू जस्ट बिकॉज मेरे हाथ में नहीं था, आई वॉज हेल्पलेस, True. कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं। माई मॉम यूज टू कॉल एंड शी यूज टू गाइड देम कि आप अभी ऐसा करो, ये करो, अभी ये ऐसा होगा। सो माई मॉम यूज टू बी देयर ऑन वीडियो कॉल, आई यूज टू बी देयर। मुझे तो नॉलेज थी नहीं, मेरा पहला बच्चा था। Right. तो मॉम यूज टू गाइड देम कि आप ऐसा करो, अब ये इस टाइम पे दूध पिलाओ, बिकॉज मदर मिल्क वॉज नॉट देयर, तो बेबी फीड देना पड़ता था, जो भी था बेबी फूड। तो दैट्स हाउ इट वाज। आई मीन आप बोलते हो ना इंडस्ट्री के फ्रेंड्स, सो दीज आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव इन द इंडस्ट्री। Hats off to that couple. Seriously, and I can see you're all teary. Of course, of course. I You're mean, all- I can never forget those days in my life ever. Like, कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। जी, जी. And what they've done for me, I will never ever be able to forget that also. Commendable. It's commendable what the couple did for you, being friends in such tough times when the entire country was shut, and they were stood next to you. I mean, उनकी हिम्मत की मैं इतनी दाद दूंगा कि जहाँ दुनिया में इंसान को काम नहीं आ पा रहा था, लोग डर रहे थे एक दूसरे से, मतलब लोग मिल भी रहे थे तो 5 फीट की दूरी पे मिल रहे थे एक दूसरे से। उस टाइम पे ड्यूरिंग दोज, मतलब वो पीक टाइम था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि बॉम्बे में पता नहीं कोई भूत आ गया है या एलियन आ गया है। बॉम्बे वॉज ट्रीटेड लाइक दैट टाइम। Right, right. उस टाइम पे वो लोग मेरे साथ आए, कोविड हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेरी बेबी को वहाँ से लिया, 2 दिन अपने साथ रखा। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। Truly, very true, very Hats true. off I to mean, these are some of the great and the superhuman beings, Yes, according yes, to me, yes. who selflessly came forward for friends and took such a big risk for themselves, their lives, and were there for you. I agree. I True, completely this is like the epitome of friendship. agree. Yes. I would like to say thank you to you guys. Seriously, hearing Yes, this yes. also kind of touched my heart. मतलब मेरे लिए तो थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर देम, वेरी स्मॉल। So that's your bromance period. That's your moment over there. ये मैंने कमाया है इंडस्ट्री में। जी. दिस इज व्हाट आई अर्नड। आई हैव सच गुड फ्रेंड्स कि अगर मैं
आधी रात को भी अगर उनको फ़ोन करूँगा ना, दे विल बी देयर फॉर मी. So the competition has always been very motivating. Always, always, and always. not toxic for you. Always. हमारा जो ग्रुप है, when it comes to work, रिकमेंडेशन करना एक दूसरे को कि यार यहाँ पे फला प्रोडक्शन हाउस में काम हो रहा है, कास्टिंग हो रही है, तो आई रिकमेंड योर नेम, आई नो समबडी ओवर देयर, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट देम. सो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं. So what's your group like, if you want to know? So we, as an audience, we know television industry has this very famous group with Karan Wahi and Ritwik and Arjun together, Suyash, Kishwar Merchant. So this is this entire group that we know. What is your group? See, I have friends. I have Indraneel Bhattacharya, Anjali Mukhi, Jignesh Joshi is there, Avinash Sachdev is there, then Mickey Dudhani is there. He's also an actor. फिर अंशुल इज़ देयर, कृष्णा सोनी इज़ देयर. बहुत सारे दोस्त हैं और नॉन इंडस्ट्री वाले भी हैं, फिर उनके स्पाउसेस भी हैं सबके जी. तो एक अच्छा खासा ग्रुप है. नॉट वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वी मीट क्वाइट ऑफन. हम लोग मतलब 10 दिन में 2 बार तो मिल ही लेते हैं. तो ऐसा है. बट येस, ऑफ कोर्स वी आर नॉट वेरी सोशल मीडिया पीपल काइंड ऑफ अ थिंग. बट येस, देर आर फ्रेंड्स हु मतलब आधी रात को भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे. Wonderful. Now, since that we know you are talking about emotions, we are discussing emotions, we are discussing mental peace and health. Let's throw some light on a very crucial topic, and which is also the theme of this podcast, which is men's mental health. And how in the past we've seen so many cases where men have committed suicide related to the traumas and depressions in their life. What is your take? Is it okay for men to cry? Is it okay? Because I believe everybody goes through some sort of distress in their life. But we as a society are always okay with the woman crying, or we are okay hearing out the woman. Do you think men face some sort of biasness over there? मर्दों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द कभी रोता नहीं है. Right. आई फील ये सबसे गलत स्टेटमेंट सिखाई जाती है हम लोग को. हम लोग की कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि अगर कोई मर्द रो रहा है तो ये कमज़ोर है, ये लड़ना नहीं जानता. हालांकि क्राइंग इज नॉट योर वीकनेस, True. इट इज़ योर स्ट्रेंथ. Absolutely. अगर एक औरत अपने इमोशंस दिखा सकती है तो एक मर्द को भी उतना ही हक है अपने इमोशन शेयर करने का. Very true. बट हमारी कंडीशनिंग, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि हमें सिखाया जाता है यार स्ट्रांग रहो, मर्द हो आप. मर्दानगी अपने इमोशन छुपाने में नहीं है, मर्दानगी अपने इमोशन दिखाने में है. आप जो फील कर रहे हो अगर आप दिखाओगे नहीं तो लोग आपको कैसे समझेंगे? True. Very true. How will they understand you? और मर्दों को ऐसा लगता है कि यार मैं अगर शायद किसी के साथ अपने इमोशन शेयर करूंगा ना तो ये मेरा फायदा उठाएगा. ऐसा नहीं है. सब लोग इस तरह नहीं होते. आप अपनी फैमिली से शेयर करो ना. जरूरी नहीं आप किसी अनजान से शेयर करो. जरूरी नहीं आप किसी बाहर वाले के साथ शेयर करो. हाँ, अगर बाहर वाला भी आपका कोई करीबी है, आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, खाते पीते हो, आप पार्टीज करते हो, तो आप इमोशन क्यों नहीं शेयर कर सकते हो? Right. कर सकते हो. बिल्कुल. बिल्कुल. और मेरे हिसाब से आज की डेट में इफ वी टॉक अबाउट मेन हु आर मैरिड, आज की डेट में अगर आप देखने जाओ तो डिवोर्स रेशोज काफ़ी बढ़ चुके हैं. राइट. और जब एक डिवोर्स होता है ना तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस ना मर्द को दोषी ठहराया जाता है कि यार इसी में कुछ होगा इसीलिए ऐसा हुआ. ऐसा नहीं होता है हर बार. नॉट नेसेसरी. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कहीं एक औरत गलत नहीं हो सकती. औरत भी गलत हो सकती है. एक शादीशुदा मर्द जो शादी करता है, अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स दोनों की वजह से हो सकती है, या एक की वजह से भी हो सकती है, या मर्द की वजह से हो सकती है, या औरत की वजह से हो सकती है.
नॉट नेसेसरी कि हमेशा कल्प्रिट मर्द ही होगा, Right. नॉट नेसेसरी। True. और एक मर्द जब शादी करता है ना, तो चीजें बहुत बदलती हैं उसकी लाइफ में। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके अंदर, और एक ऐसी चीज आती है कि यार अब मेरी शादी हो चुकी है, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। ऐसा होता है। तो उनको लगता है यार अब मेरी शादी तो हो गई ना, मेरी वाइफ है मेरे पास, तो मैं बाहर फोकस करता हूं। तो उनका ध्यान बाहर की तरफ जाता है, काम की तरफ, पैसे बनाने की तरफ, या व्हाटएवर, क्योंकि एक पार्ट ऑफ योर लाइफ इज सिक्योर्ड। Correct. सो जो दूसरा पार्ट है उसको सिक्योर बनाने में ज्यादा मसरूफ हो जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है इसके चलते चलते वो फैमिली को कहीं ना कहीं थोड़ा निग्लेक्ट कर जाए, या कहीं इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। बहुत सारी गलत फहमियां ऐसी होती हैं औरतों को Right. कि यार ये तो काम ही है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता है, वो आपसे प्यार करता है इसीलिए वहां ज्यादा फोकस कर रहा है कि आपको बेटर लाइफ दे पाए। Correct. बहुत सारी औरतें आज की डेट में ऐसी भी हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इवन माई ओन वाइफ, आई विल गिव यू प्राइम एग्जांपल। ड्यूरिंग कोविड माई वर्क वॉज नॉट हैपनिंग। हमारी इंडस्ट्री कंप्लीटली बंद हो चुकी थी। Right. काम जो था वो लिमिटेड था, जिनके पास काम था वो कर रहे थे, जिनके पास नहीं था वो घर पे बैठे थे। आई वॉज द वन, मेरे पास कोई काम नहीं था 4 साल। तो जो भी था, माई वाइफ इज अ वर्किंग वुमन, Woman. तो उन्होंने घर चलाया, और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं। आई मीन शी वॉज देयर फॉर मी, शी स्टूड बाय मी इन माई डिफिकल्ट टाइम। Right. तो मेरे हिसाब से मर्दों को सोसाइटी ने टैग कर दिया है कि ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस। इसको कमाना बहुत जरूरी है। अगर कोई मर्द नहीं कमाया जाता है तो उसको नीची नजर से देखा जाता है कि यार ये तो कमाता ही नहीं है। क्यों? अगर एक औरत कमा रही है, एक मर्द अगर घर पे है, हाँ, अगर उस कोई काम करना ही नहीं चाहता, वो एक अलग केस हो जाता है। Right. अगर आप काम करना चाहते हो, बाय अनफॉर्चुनेटली अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आपकी क्या गलती है उसमें? Correct. आज की डेट में अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, हमारी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है जहां पे हो सकता है मैं चाहते हुए भी काम ना कर पाऊं, तो ये मेरी गलती थोड़ी है। Agreed. हाँ, मैं काम ना करूं, मैं करना ही नहीं चाहता, मैं दिन भर निठल्ले की तरह बैठा हुआ हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, देन यू ब्लेम मी, देन यू ब्लेम द मेन। Correct. बट एक आदमी काम करना चाहता है और किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो दोषी नहीं है यार। बिल्कुल। तो उसको दोषी मत ठहराओ, उसको कटघरे में मत रखो कि यार तुम गुनहगार हो। नहीं, आप उसकी मेंटल स्टेट तो समझो, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू। वो अलग फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। और घर पे जब वो बैठा है तो घर पे उसको सुनने को मिलता है कि यार तू काम क्यों नहीं कर रहा, तू करता क्यों नहीं है, कुछ भी कर। यार एक आदमी की डिग्निटी होती है, एक कुछ चीज होती है, उसके दिमाग में भी होता है कि यार मैं यहां हूं तो मैं ये काम करूं। यहां से यहां आके जब आप काम करते हो ना, तो आपको अंदर से तोड़ देता है। सो यही है कि जहां मर्द की बात आती है ना, तो एक वाइफ का काम होता है कि उसको सपोर्ट करना, वेदर ही इज गोइंग अप इन द लाइफ और डाउन इन द लाइफ। क्योंकि आज हम लोग जो हैं, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो माई फैमिली इज नॉट विद मी, देर इज ओनली माई वाइफ एंड माई डॉटर। तो डॉटर से भी पहले मेरी वाइफ है, ठीक है। तो वो अगर मुझे सपोर्ट करेगी और मोटिवेट करेगी ना, तो मैं दुनिया से लड़ लूंगा। आदमी टूटता कब है? जब उसके घर में उसके कलेश होता है या घर के झगड़े होते हैं, वहां टूटता है। बाहर दुनिया से तो वो लड़ लेगा, वो लड़के बुरा भला बोल के कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ कर लेगा। बट जब वो घर पे है ना, जो घर पे जो लड़ाइयां होती हैं, उससे मर्द टूटता है। Right. फिर वो सब छोड़ देता है, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वो दुनियादारी छोड़ देगा, फिर वो ये बोलेगा कि यार योर डिसीजन, जो करना है करो। फिर वो चुप हो जाएगा,
फिर वो आपसे शेयर भी नहीं करेगा। ये चीजें जो घर के कलेश होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ, जब वाइफ एक हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं करती है ना, तो वो टूटता है, वो अंदर से टूटता है। बिल्कुल। एक वाइफ आज के ज़माने में बोलूँगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक सर्टन एज के बाद हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हो गई है, हमारी सोसाइटी इस तरह से, कि यार मेरे माँ बाप तो अब बूढ़े हैं, उनको क्या टेंशन दूँ, उनके साथ क्या शेयर करूँ अपनी प्रॉब्लम, उनके पास टाइम कम है आज, तो मुझे उनको तो खुशियाँ देनी है, अपनी प्रॉब्लम थोड़ी शेयर करनी है उनके साथ। तो आपके पास शेयरिंग के लिए कौन है? आपकी वाइफ है। तो वही चीज़ अगर आप अपनी वाइफ के साथ शेयर करोगे और वो सपोर्ट करती है, तो फिर आप दुनिया से लड़ जाओगे। अगर वो सपोर्ट नहीं करती है, फिर तो बचा ही नहीं आपके पास कुछ। ट्रू। फिर तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आप कहाँ जाओगे? किसके साथ शेयर करोगे? हर एक चीज आप अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं कर सकते। राइट। जो चीजें, जिस तरीके से आप रहते हो, जिस तरीके से आप हो, आपकी वाइफ को ज्यादा दिखता है, आपके फ्रेंड को नहीं दिखता, क्योंकि आप उसके साथ दिन रात नहीं रह रहे। दिन रात आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो। Agreed. तो वाइफ का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, मतलब शायद हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, जब एक औरत रोती है ना, तो उसके पास, उसके इर्द गिर्द ना 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। जब एक मर्द रोता है ना, कभी जब वो अपनी दुख भरी कहानी या कुछ आप बीती सुना रहा होता है, तो लोग बोलते हैं अरे यार क्या कर रहे है तू यार, क्यों पका रहा है, बी अ मैन, स्ट्रॉन्ग, क्या कर रहा है तू, लड़कियों की तरह रो रहा है, ऐसा कहा जाता है। राइट। तो ये सही नहीं है, ये हमारी कंडीशनिंग सही नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के जो ये नियम हैं, ये जो तौर तरीके हैं, ये बदलने चाहिए। और कहीं ना कहीं आज की डेट में मुझे लगता है बदलना शुरू हुए हैं। राइट। लोग मर्दों को भी उतना ही सीरियस और उतना ही इम्पोर्टेंस देने लगे जितना औरतों को दी जाती थी। हालांकि women आर मोर स्ट्रॉन्गर इन टूडेज टाइम, men are इमोशनली वीक। मुझे ये समझ में आता है आज का सिनारियो देख के। But that is also what to do, Puneet, because for centuries and for ages, men were pretending to be stronger than women. Why? Because again, as you rightly said, हमारी सोसाइटी ने उन्हें चाहते ना चाहते हुए भी स्ट्रॉन्ग बना रखा था। अब जब नहीं हो पा रहा है, इट्स लाइक इट्स रीच द थ्रेशोल्ड वेयर जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, दे आर टेकिंग द रूट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, okay, or landing up into depression and anxiety issues and stuff like that. So I think it's high time that we as a society also take the onus on us, okay, it's okay for them to speak out, express equally the way you, a female, or your spouse or anybody is entitled to express herself and her emotions and what she's going through mentally, so is a man. And that is the entire gist why men unplugged also, so that we could encourage the men that it is okay to speak up rather than taking drastic steps in life. It is okay, and I believe we women also now understand that you all equally require a safe mental space. So I would urge all the women out there, all the parents out there, the society as a whole, to encourage men to be themselves, speak up, and be safe rather than losing our loved ones to such depressions and anxieties and suicides. It's better to provide a shoulder for them to express and to cry on. आई एग्री। आपने एक वर्ड यूज किया, प्रिटेंडिंग। जी। एक इंसान कब तक प्रिटेंड कर पाएगा? हमारी सोसाइटी ने तो नॉर्म्स बना दिया कि मर्द कभी रोता नहीं है, ठीक है, बट जब मर्द को रोना आएगा तो वो रोएगा। करेक्ट। एंड जस्टिफाइड है। क्यों नहीं रो सकते हो आप? कब तक प्रिटेंड करोगे सोसाइटी के चक्कर में? जो लोग प्रिटेंड करते रहते हैं, एक पॉइंट आता है व्हेन दे टेक अ ड्रास्टिक स्टेप, ट्रू, व्हिच इज नॉट द सॉल्यूशन। आपने तो वो स्टेप ले लिया और आप चले गए, पीछे क्या? आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, उनका क्या? उनका तो सोचा ही नहीं आपने। राइट। इसीलिए ही when it comes to the men health, mental health, your family has to support you.
इट स्टार्ट्स विद द फैमिली. करेक्ट. ट्रू. अगर यही आप अपनी फैमिली के सामने रो दिए होते, आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई होती, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन आ गया होता कि आपको ये ड्रास्टिक स्टेप लेना नहीं पड़ता. सी, नारी को शक्ति इसलिए ऐसे ही नहीं कहा जाता. नारी में सच में शक्ति है. नारी के सामने अगर नर रोएगा तो नारी में वो शक्ति है कि वो उसको वहां से निकाल के ले आए. ट्रू. अगर आप हमारे पुराणों और इनमें जाओगे कथाओं में, तो वहां अरे यार वो तो मतलब वो भगवान से लड़के अपने पति को वापस ले आई थी. राइट. तो वो शक्ति नारी को ऐसे ही नहीं दी गई है, इसीलिए ही दी गई है मर्दों का उद्धार करने के लिए. तो बी सपोर्टिव टू देम. जब अगर मर्द आपका वल्नरेबल है, कमजोर पड़ रहा है, तो आप उसकी ताकत बनिए, ना कि उसको दुत्कारिए. Correct. But then again, this equation, as I said, men and their respect is directly proportional to the money they are making. Unfortunately. नहीं, अनफॉर्चुनेट है. क्या मर्द सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा होता है? हाँ, क्या मर्द की जिम्मेदारी सिर्फ बाहर जाके पैसा कमा के लाओ और घर चलाओ? नहीं. मर्द एक बाप भी है, एक भाई भी है, एक बेटा भी है, एक पति भी है, किसी का बाप भी है, दोस्त भी है. आजकल मैंने बड़ा देखा है, हमारे भी दोस्त हैं, आसपास भी पता चलता है कि यार मैं ना मिलने नहीं आऊँगा दोस्तों के साथ. मतलब अभी हमारा प्लान बन रहा है ना, मैं नहीं आ पाऊँगा. क्यों नहीं आ पाएगा भाई? अरे यार मेरी वाइफ मना कर रही है. अरे क्यों मना कर रहे हो आप? वो अगर हफ्ते में 6 दिन आपके साथ है, अगर एक दिन कुछ घंटे वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, गप्पे लड़ाना और मे बी हैव अ ड्रिंक इज अ मेंटल थेरेपी फॉर अस. मेन वांट दैट. भले ही वो बेकार की बातें करेंगे जिन बातों का कोई सेंस नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, बट वो यहां से इतना शांत होके आएगा ना, तो आपको दोबारा डबल टाइम देगा कि यार मेरी वाइफ ने तो मुझे टोका ही नहीं वहां जाने के लिए, सो आई शुड गिव हर टाइम. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अंडरस्टैंडिंग की चीजें. मुझे एक बात बताओ, आज डिवोर्स रेशोज इतने बढ़ गए हैं. क्या हमारे माँ बाप से झगड़ा नहीं होता? क्या हमारी बहन के साथ झगड़ा नहीं होता? क्या हमारी भाई के साथ झगड़ा नहीं होता? होता है ना. क्या हम उनसे डिवोर्स लेते हैं? नहीं लेते ना. तो जब हमारी वाइफ के साथ झगड़ा होता है, तो हमारा ये फाइनल रिसोर्स क्यों होता है कि हमें डिवोर्स लेना है? क्यों नहीं हम एक दूसरे की अच्छी और बुरी दोनों आदतें एक्सेप्ट करके चलें? करेक्ट. क्यों नहीं हम हमारी वो अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ा सकते हैं कि यार ये चीज इसको ट्रिगर करती है, तो आई शुड नॉट डू दैट. करेक्ट. या ये चीज मुझे ट्रिगर करती है, तो आप ये मत करिए. या ये इसका फ्लॉ है, ये अपने दोस्तों के साथ मिलने जाएगा, तो लेट हिम गो. या ये अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में जा रही है, इसका फ्री टाइम है, लेट हर गो. ये सी मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर जो झगड़े होते हैं, उनके लिए जरूरी नहीं हमेशा कोई बड़ा मेजर रीजन हो. राइट. छोटी छोटी चीजों पे झगड़े होते हैं ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है डे टू डे में. तो वो छोटी चीजें दरकिनार करो, हंसी मजाक में टाल दो और आगे बढ़ो ना लाइफ में. बिकॉज लाइफ में बड़ी चीजें करनी है यार. ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ के अगर आप डिवोर्स लेने लग गए, फिर तो मुश्किल है. वेरी ट्रू, आई एग्री. बहुत मुश्किल है. और हो सकता है शायद जिस तरीके से हमारी दुनिया चल रही है आगे, 15 साल 20 साल बाद शायद मेरे और आपके बच्चे शादी करें ही ना. आई नो. जिस तरीके का आज का माहौल हो गया है, बिकॉज मैरिज रिलेशनशिप हैज बिकम सो फ्रजाइल कि छोटी छोटी चीजों पे लोग डिवोर्स लेने के लिए तैयार. करेक्ट. नहीं, इसके लिए शादी नहीं की थी आपने, या एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल करने के लिए शादी नहीं की थी आपने. एक दूसरे की जिंदगी आसान बनाने के लिए शादी की आप. गलतियां होती, सबसे गलतियां होती. इंसान है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं. गलतियां करोगे तो सीखोगे. करेक्ट.
अगर आप गलती नहीं की तो आप इंसान नहीं, आप भगवान होते ना। ट्रू। तो वो गलतियां की हैं, आप एक बार उस बंदे या बंदी को माफ तो करो, एक मौका तो दो। हाँ, फिर अगर दोबारा वो चीजें रिपीट हो रही हैं तो फिर अलग चीजें हो जाती, वो एक्सट्रीम केस हो गया। करेक्ट। बट छोटी छोटी चीजों पे आप डिवोर्स नहीं रहना मुझे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, नहीं, नॉट द सॉल्यूशन। This reminds me of a very beautiful video I had seen where a 70-80-year-old grandma was telling a new generation, a newlywed, the reason हमारी शादी 40-50-60 साल टिकी was because हमने हमारे ज़माने में जब चीज़ें ख़राब होती थी तो हम रिपेयर करते थे, हम रिप्लेस नहीं करते थे। Yeah. I agree. But today everybody. Replacement is very easy. Correct. Very easy. अगर आप देखो ना, हम लोग पहले की बात करते हैं, बहुत पहले की बात करता हूँ मैं, जब छोटे थे हम लोग, हमारे माँ बाप जब हमारी चप्पल टूट जाती थी तो मोची के पास जाके एक बार रिपेयर तो करवाते थे ना। आज की डेट में मुझे नहीं लगता मैं मोची के पास गया हूँ कितने सालों में। वर्ल्ड हैज चेंज्ड सो मच। करेक्ट। कि चीजें इतनी इजीली रिप्लेसेबल है, है। एंड एवरीबडी, इट्स नॉट अबाउट थिंग्स, पीपल ऑल्सो, people are also so easily replaceable in each other's life कि लोगों के पास क्या है ना, ऑप्शंस हैं हर एक चीज के। एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो दूसरा, तीसरा गया तो तीसरा। नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Where are we heading to? Correct. Keep those people close, those who matter, whether they are wrong, right, ugly, good, bad, ugly, whatever. Keep them close. बुरे टाइम में यही लोग आपके काम आएंगे। Very true. That's what I believe. आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके सामने आप बैठ के रो सको and they won't judge you. Absolute judgment. This is a very big term because being judgmental, especially towards men जिनके बारे में हमने प्री कंसीव नोशंस बिठाए हुए, जैसे आपने कहा सोसाइटी ने बनाए हुए। दिस टेक्स मी टू योर द मोस्ट रीसेंट शो दैट यू डिड विच वाज झनक। उसमें आपका कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही था। कैन यू जस्ट टॉक अबाउट? I'll tell you, my character in Jhanak was a 40-year-old guy जो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रहा है, जो अपने बड़े भाई की तरह सक्सेसफुल नहीं रहा है। जो एक बड़ा उसका भाई है, वो लॉयर है, सक्सेसफुल लॉयर है, उसने पैसा कमाया, उसने घर बनाया, वो सारा घर चलाता है, और ये बंदा जो है अपनी लाइफ में 40 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, और वो शायद अपना बेसिक इनकम भी नहीं, अपने बेसिक खर्चे के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता। दैट वाज माय कैरेक्टर इन द शो। राइट। और इतना ब्यूटीफुली वो कैरेक्टर लिखा गया था। आई वुड लाइक टू थैंक लीना गंगोपाध्याय जी, द राइटर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ आवर शो, जिन्होंने वो कैरेक्टर लिखा। इतना ब्यूटीफुली लिखा गया था, इतना मतलब रियलिस्टिक कैरेक्टर था वो आज के ज़माने में। कैसे लोग, घर वाले, उसका बड़ा भाई उसको ताने मारता था, तू 2 पैसे तो कमाता नहीं है, सलाह देने के लिए पहले सबसे पहले खड़ा होता है। क्यों भाई? जो आदमी सक्सेसफुल नहीं है तो क्या वो सलाह नहीं दे सकता? क्या उसका नॉलेज कहीं नहीं हो सकता आपसे ज़्यादा? हो सकता है ना। राइट। वाई इन आवर सोसाइटी ओनली सक्सेस डिफाइंस योर कैरेक्टर? सिर्फ सक्सेसफुल आदमी अक्लमंद नहीं होता है, ये गलत है हमारे सोसाइटी में। राइट। आप अनसक्सेसफुल होते हुए भी आपके पास वो दिमाग या वो चीजें हो सकती हैं जो किसी और के काम आए। ट्रू। बट ये हमारी सोसाइटी का फ्लॉ है कि आप सक्सेस हो तो ही आप एक अच्छे और समझदार इंसान हो, वरना नहीं। पैरामीटर्स सेट है। बिल्कुल कर दिए, हमने कर दिए, जाने अनजाने हमने कर दिए। तो बदलाव हमें हमारे तरफ से लाना पड़ेगा, तब सोसाइटी चेंज होगी। वेरी ट्रू। एंड आई डोंट नो बट समटाइम्स आई फील, जैसे कि आपका शो है झनक, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल शो, काफ़ी सक्सेसफुल भी है, बट वहाँ पे भी ऐसे कैरेक्टर्स ज़रूर डाल दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं
सोसाइटी का जो फ्लॉ है उसको री एनफोर्स करते हैं. See, whether it's films, televisions, or any show or medium, तो रिफ्लेक्शन तो सोसाइटी का ही है ना. जो सोसाइटी में है वहीं से तो उठाई. कहानियां कहाँ से आती हैं? कहानियां तो आम जीवन से ही आती है ना. कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? आम जीवन से आते हैं. वहीं से इंस्पायर होके लोग लिखते हैं. तो वो तो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है ना. हाँ, कुछ चीजें ड्रामेटिकली थोड़ी बनाई जाती हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट हो, ड्रामा बने, उसके लिए की जाती है. बट कहीं ना कहीं तो सारी चीजें रियलिस्टिक होती हैं. कहीं ना कहीं आज भी हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो औरतों को दबाया जाता होगा ना. भले ही मेट्रो सिटीज में नहीं, मेट्रो में भी होता होगा. कहीं ना कहीं तो औरत दबती है, तभी तो इंस्पायर होता है ना राइटर लिखने के लिए. करेक्ट. एक बेचारी औरत जो सीरियल्स में दिखाई जाती है वो कहाँ से आती है? हमारी सोसाइटी से. या एक मेरे जैसा जो कैरेक्टर जो मेरे लिए लिखा गया था वो कहाँ से आता है? हमारी सोसाइटी से. एब्सोल्युटली. एक भाई जो होता है, जो नेगेटिव अपने भाई को बोलता है, वो कहाँ से आता है? सोसाइटी से. तो ये जो सारे शोज और फिल्में, ये हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही तो है. Absolutely. But I also believe somewhere, that's just my opinion, that we get a lot influenced by television, films, social media these days. So यहाँ पर भी अगर हम, of course you're depicting the reality of societies, but कहीं ना कहीं we need to give it an angle of also that this is wrong and this is the right thing that has to be done. So somewhere people who are watching blindly and have blind faith, and in India, television, cricket and politics, people follow blindly. True. They do not even use their logic whether as to this is right or wrong. So जहाँ हम इतना पावर रखते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, why not use that medium to positively positively influence them, to inspire them, and also to correct what the society has set wrong. सी I'll be honest, जैसे अगर आप बात करें क्रिकेट की और बॉलीवुड की, ये दो रिलीजन है हमारी कंट्री में. True. दे आर लाइक रिलीजन्स. पीपल फॉलो देम ब्लाइंडली. सी क्रिकेट में आप आज देखोगे तो कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो निचले तबके से अपना मकाम बनाया उन्होंने. आप एक यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए जो पानी पूरी बेचा करते थे. आज वो कहाँ है? सो दैट इज इंस्पायरिंग. हार्ड वर्क, मेहनत करनी है आपको. दैट इज इंस्पायरिंग. व्हेन इट कम्स टू आवर फिल्म्स में भी होता है. इंस्पायरिंग स्टोरीज कितनी सारी होती हैं कि एक अंडरडॉग है, एक गरीब हीरो है जो पढ़ लिख के IPS IAS बनता है और देश को संभालता है, या प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो स्टोरीज हैं. आप क्या लेते हो उसमें से, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना. राइट. अब आप एक फिल्म है जैसे ये एनिमल करके एक फिल्म आई थी जिसकी बड़ी आलोचना हो रही थी कि ये फिल्म वायलेंट है, लोग क्या इसमें से लेंगे, क्या नहीं लेंगे. सी, आप ऑडियंस को बेवकूफ मत समझिए. ऑडियंस अपने आप चीजें चूज करेगी, वेदर इट्स गुड, बैड, अगली, वॉटएवर. बट उनको जो चाहिए वो अपने आप चूज कर लेगा. अब जिसको अच्छी चीजें सीखनी है वो अच्छी चीजें सीखेगा. एनिमल अगर वायलेंट फिल्म है तो वायलेंस देख के लोग ये भी तो सीखे होंगे ना कि ये इतना वायलेंस नहीं करना चाहिए लाइफ में. करेक्ट. इट इज नॉट गुड. दिस इज हाउ यू लुक देन. एग्जैक्टली. अब सिनेमा जो है ओनली सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाओगे तो थोड़ी चलेगा. एक ही जैसी फिल्में बनेंगी, अच्छी कहानियां, अच्छे सारे चीज, तो ऑडियंस बोर हो जाएगी. एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस. राइट. उनको फिल्म भी चलानी है. तो ये हमारे ऊपर है कि हमको क्या लेना है किसी चीज से, किसी शो से हमको क्या लेना है, किसी मूवी से हमको क्या लेना है, या किसी इंसान से क्या इंस्पिरेशन लेनी है. करेक्ट. तो सारी चीजें घूम फिर के आती हैं हमारी अपब्रिंगिंग पे. कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमने क्या, हमारा बेसिक क्या है. फंडामेंटल्स. एग्जैक्टली. True. Makes sense. So, Puneet, on that note, we move towards the end of our podcast, and you've been amazing. You've been talking and spilling the beans totally, and we really liked what all you said and inspired the audience out there. So, quickly, we'll get into a couple of questions. It's going to be like a quick fire round, but without the hamper. Okay. Yeah. So,
let us have your candid opinions Sure. on this. So, beginning with, what is tougher, acting or real life? रियल लाइफ. Why do you say that? रियल लाइफ यार आज की डेट में टफ है ना. बिकॉज एक्टिंग रोजमर्रा की काम है, रोज करते हो आप. रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि क्या आने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट बॉल, तो आप, No. इट इज टफ. True. Do men in TV ever feel lonely? या समटाइम्स, बट ये रहने नहीं देते हैं आपको लोनली. That's the benefit of being Yeah. into TV. Right. What breaks men more, love or failure? लव और फेलियर, नो, फेलियर से मर्द नहीं डरता. फेलियर से नहीं डरता. आई थिंक लव की जो प्रॉब्लम्स होती है ना जब, उनसे डरता है इंसान. So it's love. या Do you hide your emotions or express them? आई एक्सप्रेस देम You're वेरी okay. लाउडली, वेरी वोकल. Nice. Do looks matter more than the talent today in the industry you are? समटाइम्स दे डू. Have you faced a situation where you felt just based on the looks a person is getting work and not on based of the talent? Yes, of course, many times. Okay. When was the last time you cried? I cry very often. जल्दी रो देता हूँ मैं. कुछ ही दिन पहले होगा. I'm sure. Nice. But I think that's good for your या mental health. मैं मूवी देख के रो देता हूँ. Is grooming pressure real for men in TV? No. Be yourself. What's one thing men don't talk about enough? I think they're insecurities. They They do don't not talk. speak. Yeah. So it really works. I mean, you think that is the way it should be? I don't think so. It should be like that. In fact, you should talk about them more. Okay. Have you ever felt not good enough any time in your life? नहीं. सेल्फ वर्थ हमेशा से पता थी, हमेशा से, कि आज नहीं हो रहा है, कल तो हो जाएगा. So you've been a confident Yes, man. always. Otherwise यहाँ होता नहीं मैं. What keeps you going even on bad and tough days? कुछ नहीं, अपनी बेटी का चेहरा देखता हूँ और खुश हो जाता हूँ. Samara. That's it. Beautiful. On this note, let's end it by any advice or suggestions that you would love to give to the audience out there who's listening, watching you. You being a good influencer, a big influencer, and having a great impact on their lives. Anything you would like to tell them? Keep doing it. One day it will happen. Wonderful. So thank you so much, Puneet. Thank you for gracing Thank you. our show. You've been a great guest, and Thank we've you. enjoyed having the conversation with you. On that note, guys, if you've liked what we've spoken about the conversation and it has had any impact in your life, make sure you subscribe to this channel. You share this video with all your loved ones and the ones who you think really need to hear about men empowerment, men mental health, and this is something that's going to keep them stable. Yeah. Until next time, take care of yourself. I'll see you on the other side. Thank you.